Bismillahirrahmanirrahim. Paper D, Ecology. Chapter Introduction to Ecology. According to book and syllabus, it is chapter number 1. Topics included definition of ecology, scope of ecology, and applications of ecology. First one, the definition. It is the study of interaction between organisms and their environment. Ecology include both biotic factors, that is living organisms, and abiotic factor, that is temperature, light, water, wind, soil, and nutrients. The interactions found among the organisms. Predation means predator-prey relationship. Competition among the organisms, जब एक ही इन्वायरमेंट में एक जैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर वाटर, फॉर शेल्टर एट्सेट्रा. Parasitism mean the relationship between the host and parasite. And cooperation, the example of the cooperation honeybees, जैसे वो तमाम कॉलोनी में रहकर मिलजुल के काम करते हैं. The term ecology was first used by the Ernest Haeckel, 1869. Ecology is a Greek word. Oikos mean home or place to live. Logos mean understanding. Ecology is the study of reciprocal or mutual relationship between living organisms and environment. Subdivisions of ecology: Aut ecology and Syn ecology. First one, Aut ecology, the relationship between the population and environment. And Syn ecology, it is the study of relationship between community and environment. Fields of ecology. First one is the behavioral ecology, the ways animals interact with their living and non-living environment as influenced by the natural selection. What are the influences by means of natural selection? Means competition between organisms. जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो सर्वाइव कर जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता अपने लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर सकता, शेल्टर वाटर हासिल नहीं कर सकता, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाता है. जेनेटिक वेरिएशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस, कुछ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते. तो दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. सेकेंड, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी और इकोफिजियोलॉजी, रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द टेम्परेचर, light, moisture and nutrients. Third is the evolutionary ecology. It is the interaction of population dynamics. What is population dynamics? That how the population change in size and composition over time. Genetics, natural selection and evolution. Fourth, chemical ecology. It is a study of chemical reactions of the organism to their environment. Use of chemicals by the plants and animals as attractants, repellents and defensive mechanisms, their evolution and chemical structure. जैसे कि प्लांट्स में अट्रैक्टर्स प्रेजेंट हैं, फ्लावर्स में नेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं और इट रिजल्ट्स इन पॉलिनेशन. रिपेलेंट्स, प्लांट में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, टर्पेनॉइड्स, अल्कलाइड्स वगैरह, जो कि हार्बीवोर्स को रेजिस्ट करते हैं, यानी वो हार्बीवोर्स उनको टेस्ट अच्छा ना होने की वजह से उन प्लांट्स पर अटैक नहीं करते. एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म, प्लांट्स के केस में आप देख लें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे थॉर्न्स या स्पाइंस होते हैं, तो फिर उन पर एनिमल अटैक नहीं करते. लास्ट वन इज़ द अप्लाइड इकोलॉजी. इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड अ बेस फॉर इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन. स्कोप ऑफ इकोलॉजी. Ecology attempts to tell us why a particular kind of organisms can be found living in one place and not the other. Factors that control the number of particular kind of organism and maintain them at certain level to predict the future behavior of the groups or the organisms. Means कुछ plants जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं, कुछ जीरोफाइट्स हैं. तो क्यों कोई प्लांट एक पर्टिकुलर कंडीशन में या इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, किसी दूसरी जगह पे नहीं ग्रो करता, और ऐसे क्या फैक्टर हैं इन्वायरमेंट में जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर को कंट्रोल करते हैं ताकि वो ओवर प्रोड्यूस ना हो जाए. और एंड ऑल्सो इकोलॉजी टेल्स अस और प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर, कि जब दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हमारे पास कंपटीशन हो तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, विगरस होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं. तो ऐसे क्या हमारे पास रीजंस क्या हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से. नाउ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी.
Man live in the nature and depends on the resources of the nature. Food, shelter and clothing are primary requirements. Man exploit or utilize the natural resources to the maximum that has resulted in undesirable change in the natural habitats. Consequently, the stock of plants and animals disappear. Many species became extinct and declared endangered. यानी इंसान को अपनी ज़रूरियात के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है. मिस मैनेजमेंट की वजह से हमारे पास जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनमें अनडिज़ायरेबल चेंजेस अपीयर हो रहे हैं. बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशी ऐसी हैं जो या तो बिल्कुल एक्सटेंट हो चुकी हैं या इंडेंजर्ड हैं, यानी उनके ख़त्म होने का ख़तरा है. डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगलात का कटाव, दरख्तों का कटाव. इट कॉज द सॉइल इरोजन एंड अदर डैमेज. What is erosion? The removal of the upper fertile soil by means of water and wind. Minerals facing exhaustion because of mismanagement, overpopulation, urbanization means शहरों में आबाद होना जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होती है. Agriculture causing air, water and soil pollution. बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की वजह से हमारे पास, एग्रीकल्चर क्या है? वो तमाम प्लांट्स या क्रॉप्स जो हम खुराक के लिए ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, वो एग्रीकल्चर कहलाता है, ज़रात. तो उसकी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से जो सॉइल में मौजूद मिनरल्स हैं वो वक्त के साथ साथ जो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट होते जा रही हैं, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं. दैन दी अप्लाइड इकोलॉजी. इकोलॉजिकल थियरीज एंड मॉडल्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, preservation and restoration. All these activities make up applied ecology. The applications of the ecological principles help to improve the various fields. इंसान की वजह से जितने भी ये तमाम नुकसानात पहुँचते हैं इन्वायरमेंट को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये फील्ड हमारे पास कहलाती है अप्लाइड इकोलॉजी. फर्स्ट वन इज़ द फॉरेस्ट्री. Trees cover about 1/3 of the world's land surface and provide habitat for the wildlife. Fuel, wood यानी लकड़ी जलाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है. Fodder, चारा. Fiber, धागा जिससे कपड़ा बनाया जाता है. Timber, the wood that is used for making building, furniture, etc. And raw material used in wood-based industries. It also regulates the climatic conditions such as rainfall, humidity and temperature of the area. एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. क्योंकि रूट्स के साथ जो है सॉइल के पार्टिकल्स बाइंड हो जाते हैं, इसकी वजह से सॉइल की इरोजन नहीं हो सकती बाय मींस ऑफ वाटर एंड विंड. इसके अलावा फॉरेस्ट होने की वजह से हमारे पास फ्लड्स कम से कम आते हैं क्योंकि वो एज अ बैरियर काम करते हैं वाटर के रास्ते में. द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू प्लांट्स बायोमास विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. कंटिन्यूड डिफॉरेस्टेशन has resulted in desertification which led to the soil erosion. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से, जंगलात के कटाव की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो लैंड्स हैं वो डेजर्ट में तब्दील होती जा रही हैं, यानी उसमें खुश्की आती जा रही है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन का ख़तरा है, बल्कि सॉइल इरोजन ज़्यादा हो गई है. वाइल्ड लाइफ जो है उसकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कॉज हो गई है. इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ एक्सटेंशन. बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्पीशीज़ हैं जो वक्त के साथ साथ एक्सटेंट हो रहे हैं. Change in the climate in terms of decrease in rainfall. One of the important role played by the plants is transpiration. Transpiration से water vapor form में release हो रहा है, वो नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट रेनफॉल कम हो रही है. ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में कम है जिसकी वजह से टेम्परेचर वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रहा है. शॉर्टेज ऑफ टिम्बर. जब प्लांट्स ही नहीं है तो ज़ाहिर है वुड भी अवेलेबल नहीं है. शॉर्टेज ऑफ टिम्बर, firewood and pulpwood. Pulpwood is a softwood. Afforestation means दोबारा plants को growth करना और trees उगाना. Cultivation of forest at new site is necessary. There are two schools of thought regarding the management of the forest: monoculture or the multiple used forest. Monoculture means single species harvest. Harvest कहते हैं जब प्लांट ग्रोथ कर लें उसके बाद उनको ज़मीन से निकालना, सॉइल से निकालना. तो अगर आप एक फील्ड में एक वक्त में एक ही जैसा ट्री, एक ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो वो मोनोकल्चर कहलाएगा. इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? दिस वुड इंक्रीज़ द यील्ड एंड फास्टर ग्रोथ. जब एक फील्ड में एक ही तरह का प्लांट या एक ही तरह का ट्री ग्रोथ कर रहा है तो फ़ायदा उसका ये होगा कि प्लांट की यील्ड भी ज़्यादा होगी और ग्रोथ भी फास्टर होगी. क्योंकि जब एक ही फील्ड पर, एक ही सॉइल पर डिफरेंट स्पीशीज़ ग्रो करती हैं
तो फिर उनके दरमियान में कंपटीशन होता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा। तो जब एक ही तरह का प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो सबको एक ही तरह का मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट सब एक ही जैसा मिल रहा है, तो एज अ रिजल्ट उस प्लांट की यील्ड भी ज़्यादा होगी और वो फास्टर रेट पर ग्रो भी करेगा। सेकेंड, मल्टीपल यूज़ फॉरेस्ट, मतलब आप एक ही लैंड पर, एक ही सॉइल पर एक वक्त में एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करें। What are the advantages of the multiple use forest? It provide wildlife habitat, air and watershed. रिक्रिएशन मीन यानी वो हमें ऐसे एरिया प्रोवाइड करती हैं जब हम फॉरेस्ट की ग्रोथ करते हैं या फॉरेस्ट अगर जहाँ पर होते हैं। इट प्रोवाइड अस द एरिया फॉर हंटिंग, फिशिंग, बर्ड वॉचिंग एट्सेट्रा। हंटिंग मीन शिकार करना, जानवरों का शिकार किया जाता है। एंड हार्वेस्ट मीन टू रिमूव द प्लांट और कैच और किल द एनिमल्स एज वेल। What is airshed and watershed management? Airshed management, air frequently confined or channeled, so all parts of the area thus being subject to similar condition of air pollution. मीन प्लांट के ग्रो करने से एयर पोल्यूशन में कमी हो सकती है। तो जिस एरिया में हमारे पास प्लांट जो हैं ग्रो किए जा रहे हैं तो एयर इस तरह से कन्फाइंड या चैनल्ड हो जाती है कि प्लांट्स होने की वजह से हमारे पास उस जगह पर पोल्यूशन जो है उसमें वक्त के साथ साथ कमी आने लगती है। एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, all the water that is under the land or drained off goes to the same place. वाटर के लिए ऐसे एरिया बनाना कि जिसकी वजह से रेन वाटर या वो ज़मीन के ऊपर बह रहा है या वो सॉइल में एब्जॉर्ब होकर ज़मीन के नीचे बह रहा है, तो वो सारा का सारा जाकर एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाए। इसकी वजह से हमारे पास फ्लड्स में कमी आ सकती है, सॉइल इरोजन में कमी आ सकती है, क्योंकि जहाँ पर प्लांट्स हैं तो सॉइल की रूट्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर, प्लांट की रूट्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाता है। और प्लांट्स होने की वजह से हमारे पास फ्लड्स कम होते हैं, थोड़ा बहुत जो पानी बह के जा रहा है वो तमाम का तमाम जाकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो। तो ये एयर शेड एंड वाटर शेड मैनेजमेंट है। द मोनोकल्चर एंड मल्टीपल यूज़ फॉरेस्ट आर एंटायरली डिफरेंट इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर है इसके लिए, एंड इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देयरफॉर इट वुड बी बेटर टू adapt naturally growing forest as it provide the best and safest cover for the mountains and soil where tree forms मतलब जो trees आप खुद cultivate कर रहे हैं कैन नॉट बी मेंटेन। नेचुरली जो ट्रीज प्रेजेंट हैं, फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं, वो आपको किसी भी लैंड पर या इवन माउंटेन्स पर भी मिल जाते हैं, स्लोप्स पर भी मिल जाते हैं, लेकिन ख़ुद जो इंसान ट्री ग्रो करता है तो वो ऐसी जगहों पर मेंटेन करना मुश्किल है। आप किसी माउंटेन पर, किसी स्लोप पर ट्रीज़ नहीं ग्रो कर सकते। ट्री फॉर्म में भी रिस्ट्रिक्टेड टू फर्टाइल लैंड ओनली, और ट्री फॉर्म या जो वो वाले ट्रीज़ जो आप खुद ग्रो कर रहे हैं वो आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल लैंड पे ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड इज़ द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। The non-cultivated plant and non-domesticated animals is known as wildlife. It includes game and fur-bearing animals. What is a game species? That is hunted either for food or for the fun. स्पोर्ट्स के लिए, फन के लिए अगर उसको हंट किया जाए, शिकार किया जाए। The wildlife is the important source of leather and food and research, recreational benefits. अगेन रिक्रिएशन मीन्स हमारे पास जहाँ पर हंटिंग की जा सके या वहाँ इतने मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स हैं जिनको आपको देखने का मौका मिल सके। वाइल्ड फ्लोरा वर्ड इज़ फॉर द प्लांट फेसिंग एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ मीन डिज़ास्टर। मतलब प्लांट्स में जब कमी आती है हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास फ्लड्स आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटी है, और उसकी वजह से हमारे पास और जो स्पीशीज़ हैं उनका वक्त के साथ साथ जो है एक्सटेंशन होती जा रही है। द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स अस टू स्टडी डिफरेंट स्पीशीज़, genetic variation and interbreeding that led to the evolution. The process of evolution would be affected if wildlife is destroyed, and it is the economic source of recreation. The steps how wildlife can be managed: habitat should be conserved. जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है सबसे पहले तो उन जगहों को कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व कर लेना चाहिए। रेयर स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, एक्जॉटिक स्पीशीज़ में भी इंट्रोड्यूस्ड। एक्जॉटिक कहते हैं जो बाहर से आने वाले हों, नेचुरली किसी जगह पर ना रहते हों। प्रीडेटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम दैट कीप्स द प्राइमरी पॉपुलेशन इन कंट्रोल।
यानी कार्निवोर्स किसी इकोसिस्टम में मौजूद है तो वहाँ पर हार्बीवोर्स का लेवल कंट्रोल रहेगा। अगर ऐसा ना हो, हार्बीवोर्स का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स हमारे पास जो हैं उनके कम होने का ख़तरा होता है। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी इकोसिस्टम में हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पर, फूड चेन में तमाम ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो कंट्रोल रहे। लेगिस्लेशन may be introduced to prevent hunting. लेगिस्लेशन मीन्स कानून। ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास शिकार करना जो है उसको रोका जा सके। Sanctuaries and national park to protect the threatened species help in establishing the gene bank. What are sanctuaries? The place where predators are controlled and hunting is illegal. What is a gene bank? A collection of seeds, plants or animals maintained as a repository or storage that preserves the genetic material. Third is the range management. Range is a grassland that meant for grazing animals. Grassland most abused biomes. Abused mean जिसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए. Biomes mean biological community by man. इट इज़ अ नेचुरल पास्चर लैंड. पास्चर लैंड कहते हैं चरागाह को, जहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो ग्रेजिंग करते हैं या घास चरते हैं. बट domesticated animals have destroyed or disturbed it. Also, man converted most of the grassland into agriculture cropland. What are the steps of the range management? First one, enough net productivity may be left and number of grazing animals may be regulated. मतलब जब एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं तो एक हद तक प्लांट को खाएं, बिल्कुल ही उस लैंड से प्लांट्स का खात्मा ना हो जाए, ताकि पीछे जो कुछ रह गया है वो दोबारा उससे ग्रोथ हो सके प्लांट की. और जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो भी रेगुलेट करते रहना चाहिए, कभी कम और कभी ज़्यादा. और प्लांट के कुछ पार्ट जब सॉइल में रह जाते हैं तो उसके हमारे पास डेथ एंड डिके से सॉइल में दोबारा न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं. अगर ज़मीन बिल्कुल ही एक दफ़ा में खाली कर दी जाए, उस ज़मीन पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो प्लांट्स में दोबारा सॉइल में दोबारा न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं होंगे और सॉइल वक्त के साथ साथ जो है स्टीराइल हो जाएगी. सेकेंड, द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रेजिंग हैव टू बी रेगुलेटेड, सो फॉरेज और फोडर में बी मेंटेन एट हायर रेट. द रेंज में बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स एंड ग्रेजिंग में बी अलाउड अल्टरनेटली. मतलब अगर आप ग्रास लैंड्स के जो हैं उनके कंपार्टमेंट्स बना दें, एक पार्ट में एक दफ़ा ग्रेजिंग करवाई जाए, दूसरे पार्ट में दूसरी दफ़ा ग्रेजिंग करवाई जाए, तो अल्टरनेट हमारे पास ये चेंज जब हमारे पास होता है तो कोई भी एक सॉइल बिल्कुल खाली नहीं होगी या कोई भी एक लैंड ग्रास लैंड से बिल्कुल खाली नहीं होगा. थर्ड, पैलेटेबल और टेस्टी ग्रासेस विद हाई न्यूट्रिएंट्स में बी इंट्रोड्यूस्ड. एंड फोर्थ, फायर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स में बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड स्पीशीज. लास्ट वन इज द फिशरी मैनेजमेंट, that is aquaculture cultivation. Aqua word is for fluid water, and that is the cultivation of aquatic life for food. Ponds and lakes can be prepared. Fish in the natural habitat is found at the end of long food chain, therefore its productivity is much reduced. यानी फूड चेन में, मोस्ट ऑफ द फूड चेन में बिल्कुल एंड में हमारे पास फिशेस होती हैं, उसके बाद उसको खाने वाले और बहुत सारे एनिमल्स हैं. इसकी वजह से नेचुरल जो एक्वाटिक हैबिटेट्स होती हैं उनमें फ़िश का नंबर कंपैरेटिवली रिड्यूस होता जाता है वक्त के साथ. सो फिश पॉन्ड्स विद शॉर्ट फूड चेन बाय यूजिंग inorganic fertilizers can be maintained. Using sewage water for the fish culture is drawing much attention. Studies shows that fish feed on such diet grow up in size remarkably. Also, the size and depth of fish ponds, rate of fertilization, species composition and size ratio of fish population may be regulated to obtain the high yield. यानी जो भी आप अपनी मर्ज़ी से पॉन्ड्स या लेक्स बना रहे हैं ताकि वहाँ पर फिशेस को ग्रो कर सकें, अगर उनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाएँ एज अ फूड या वहाँ पर सीवेज प्रोवाइड किया जाए एज अ फूड, तो ऐसी डाइट लेने से हमारे पास जो फ़िश का साइज़ है वो भी ज़्यादा होता है. इसके अलावा फर्टिलाइजेशन रेट, जितना रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिशेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी. Similarly, water may be drained periodically to keep the system in rapid growth. Means जो भी ponds या lakes प्रिपेयर किए जा रहे हैं या सिंपली एक्वेरियम भी जो बनाए जाते हैं तो उनका जो वाटर है हमारे पास उनको चेंज करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास वो सिस्टम है उसमें रैपिड ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहती है. और इस तरह से फ़िश ग्रोथ या फिशरी मैनेजमेंट जो है या फ़िश फार्मिंग जो है वो की जा सकती है. सो दीज आर दी फोर वेज how to preserve or restore the environment. That is forestry,
wildlife management, range management, and fishery management.